ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਵਤਾਰ ਨਰਸਿੰਘ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਈ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ, ਹਰੀਵੰਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਾਵਤਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਚੋਂ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਵਰਾਹ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬਸ ਉਸੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਕੁੰਠ ਦੇ ਦੋ ਦਵਾਰਪਾਲ ਸੀ, ਜੈ ਤੇ ਵਿਜੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 4 ਕੁਮਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 7 ਜਨਮ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਜਨਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਨਾ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਓ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ, ਵਾਪਸ ਵਰਦਾਨ ਤੇ ਆਈਏ। ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਸ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਈ, ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੇ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ, ਨਾ ਦਿਨ ਚ ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਰਾਤ ਚ, ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਚ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਸਤਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਤੋਂ ਵੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਅਮਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਚ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤੋਂ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਗਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ, ਕਦੇ ਹਾਥੀ, ਕਦੇ ਸੱਪ, ਜ਼ਹਿਰ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਲਿਕਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋਲਿਕਾ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਦੀ ਭੈਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ। ਹਾਂ, ਹੋਲਿਕਾ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੋਲਿਕਾ ਦਹਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਨੇ ਇੱਕ ਥੰਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਥੰਬ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗਦਾ ਮਾਰੀ ਥੰਬ ਤੇ, ਇੱਕਦਮ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਥੰਬ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਨਰਸਿੰਘ, ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ, ਨਰ ਸਿੰਘ। ਵਾਹ, ਇਹ ਰੂਪ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸਨ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਪਸ਼ੂ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ। ਤੀਜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ। ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਤਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖਤਮ। ਤੇ ਆਖਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਾਹ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਡਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਰਸਿੰਘ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਗਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਗਰ ਰੂਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਗਰ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਿਰਣਿਆਕਸ਼ਿਪੂ ਦਾ ਸੰਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਗ ਨਰਸਿੰਘ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਯੋਗ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਹੋਬਿਲਮ। ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਵ ਨਰਸਿੰਘ, ਯਾਨੀ 9 ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਹਨ। ਹਰ ਰੂਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਭਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਂ, ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਖੋਜ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਈਏ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਸ਼ਾਵਤਾਰ ਤੇ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸਵਾਦ 'ਚ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਤਸਿਆ ਅਵਤਾਰ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਕੂਰਮ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵਰਾਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਨਰਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਪੜਾਵ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੋਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੀਟੇਸ਼ੀਅਸ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੋਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। आज हम भगवान विष्णु के एक बहुत ही खास अवतार नरसिम्हा की कहानी में गहराई से उतरेंगे। जी, एक ऐसी शक्ल जो ना पूरी तरह इंसान है ना जानवर, बहुत ही मुनफरिद। बिल्कुल, और हमारे पास इसके लिए भगवत पुराण, विष्णु पुराण जैसी कदीम तहरीरें हैं और कुछ जदीद तज्जिए भी हैं। जी हाँ, मकसद यही है कि इस ताकतवर रूप को समझें और देखें कि ये कहानी हमें अकीदत, इंसाफ और बदी पर नेकी की फतेह के बारे में क्या सिखाती है। सही। तो इस कहानी की शुरुआत असल में वैकुंठ से होती है। विष्णु के जो दो दरबान थे, जय और विजय, हाँ, जय और विजय, उनसे गलती हुई। ब्रह्मा के 4 बेटे जो कुमार कहलाते हैं, वो आए विष्णु से मिलने। नौजवान थे। अच्छा, तो जय और विजय ने उन्हें बचकाना समझकर या किसी वजह से अंदर जाने से रोक दिया। ओह, इस पर कुमारों को गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम वैकुंठ से गिरोगे, जमीन पर जन्म लोगे। तो फिर कोई रास्ता नहीं था उनके पास? विष्णु ने कुछ किया? विष्णु भगवान आए। उन्होंने जय विजय को एक इंतखाब दिया। कहा कि या तो 7 जन्म मेरे भक्त बनकर जमीन पर रहो। 7 जन्म? जी, या फिर 3 जन्म मेरे दुश्मन यानी असुर बनकर गुजारो। अब उन्हें जल्दी वापस आना था। तो उन्होंने दुश्मन बनना चुना ताकि जल्दी वापस आ सकें। बिल्कुल, उन्होंने सोचा 3 जन्म जल्दी गुजर जाएंगे, तो उन्होंने दुश्मन बनना कबूल किया। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। जी, और उनका पहला जन्म हुआ सतयुग में, 2 भाइयों के रूप में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। बड़े ताकतवर असुर थे। तो ये पसे मंजर था उस सारी दुश्मनी का? ये पहले से तय था। हाँ, एक तरह से ये एक बड़े कायनाती ड्रामे का हिस्सा था। और जब विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारा, तो जाहिर है उसका भाई हिरण्यकशिपु वो बदला लेना चाहेगा। बिल्कुल, वो गुस्से और इंतकाम में जलने लगा। उसने तहिया किया कि वो विष्णु से बदला लेगा और लापानी हो जाएगा। लापानी बनने के लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ती है। उसने बहुत बहुत कठिन तपस्या की, इतनी के ब्रह्मा जी खुश हो गए और कहा, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। अच्छा, तो उसने एक बहुत ही, आप कह लें, होशियारी से वरदान मांगा। क्या वरदान था वो? सुना है बहुत पेचीदा था। जी हाँ, उसने कहा कि मुझे ना कोई इंसान मार सके, ना कोई जानवर। ठीक है। ना दिन में मरूं, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, ना जमीन पर, ना आसमान में। अरे वाह। और ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से, यानी ना किसी जानदार हथियार से, ना बेजान से। और भी कुछ था? हाँ, एक और शर्त थी कि मुझे ब्रह्मा की बनाई हुई कोई मखलूक ना मार सके। ये तो तकरीबन नामुमकिन बना दिया उसने खुद को मारना। यही उसका ख्याल था। वो समझता था कि अब मैं अमर हो गया हूँ। लेकिन यहीं से कहानी का असल रुख बदलता है ना। इसी हिरण्यकशिपु के घर उसका बेटा प्रहलाद पैदा हुआ। जी, और प्रहलाद बचपन से ही विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। बाप असुर, विष्णु का दुश्मन, और बेटा विष्णु का भक्त। बिल्कुल। हिरण्यकशिपु ने बहुत कोशिश की कि बेटा राय रास्त पर आ जाए, मतलब उसकी नजर में विष्णु की भक्ति छोड़ दे। और इस कोशिश में जराए बताते हैं कि उसने प्रहलाद को बहुत अजियतें दी, पहाड़ से गिराया। जी, जहरीले सांपों में फेंका, हाथियों के पैरों तले कुचलने की कोशिश की, जहर पिलाया। मगर प्रहलाद हर बार बच गया, विष्णु की कृपा से। हर बार। फिर वो मशहूर वाक़या हुआ होलिका वाला। हाँ, होलिका दहन, उसका क्या ताल्लुक है? होलिका जो थी वो हिरण्यकशिपु की बहन थी। उसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। अच्छा। तो मंसूबा ये बना कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ जाएगी, प्रहलाद जल जाएगा, होलिका बच जाएगी। लेकिन हुआ उल्टा। बिल्कुल उल्टा हुआ। होलिका जल गई, प्रहलाद सही सलामत बाहर आ गया। इसीलिए तो होली से पहले होलिका दहन की रस्म अदा की जाती है। ये तो कमाल है। अच्छा, तो जब कोई तरकीब काम न आई, तब हिरण्यकशिपु का गुस्सा तो आसमान पर पहुंच गया होगा। बहुत ज्यादा। आखिरकार उसने तंग आकर गुस्से में दरबार में एक सुजून की तरफ इशारा किया। स्तून की तरफ? जी, और प्रहलाद से पूछा तो कहता है, तेरा विष्णु हर जगह है, क्या वो इस खंबे में भी है? और फिर प्रहलाद ने क्या कहा? प्रहलाद ने पूरे यकीन से कहा, जी पिताजी, वो इसमें भी है। बस ये सुनकर हिरण्यकशिपु ने गजबनाक होकर अपनी गदा उठाई और पूरी ताकत से उस स्तून पर दे मारी। और फिर स्तून एक खौफनाक, कान फाड़ देने वाली धाड़ के साथ फट गया और उसमें से नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए। आधा शेर आधा इंसान, नरसिम्हा। कैसा रूप था उनका, जराए क्या बताते हैं? इंतहाई खौफनाक, आग जैसी दहकती आंखें, शेर का चेहरा, लंबे तेज धार नाखून, कई बाजू और उनमें विष्णु के सारे आयुध, चक्र, गदा, शंख, पद्म। स्तून से निकलना, इसका क्या मतलब है? ये खुदा की हमागिरियत की अलामत है, ओमनी प्रेजेंस, कि वो कहीं भी, किसी भी चीज में, किसी भी वक्त जाहिर हो सकता है। और फिर वो वरदान, इतनी सारी शर्तें, वो कैसे पूरी हुई? ये सबसे अहम नुक्ता है। यही तो इलाही हिकमत है। देखें, नरसिम्हा का रूप ना इंसान का था न जानवर का, आधा आधा। ठीक है, पहली शर्त पूरी हुई। उन्होंने हिरण्याकशिपु को पकड़ा महल की दहलीज पर, चौखट पर, जो ना घर के अंदर थी ना बाहर। दूसरी शर्त भी गई। वक्त था शाम का, गोधुली का, संध्या का वक्त, ना दिन था ना रात। तीसरी शर्त? उसे उठाकर अपनी गोद में रखा,
जो ना जमीन थी ना आसमान। चौथी भी पूरी। और फिर अपने लंबे तेज नाखूनों से उसका सीना चाक कर दिया। नाखून ना अस्त्र हैं ना शस्त्र, ना जानदार हथियार ना बेजान। पांचवी शर्त भी खत्म। और आखिरी बात, नरसिम्हा विष्णु के अवतार थे, वो ब्रह्मा की तख्लीक नहीं थे। छठी शर्त भी गई। वाह, मतलब हर एक शर्त को पूरा करते हुए इंसाफ किया गया। कमाल है ये तो। जी, ये दिखाता है कि इलाही इंसाफ भी कवानीन के दायरे में रहकर काम करता है, मगर मुमकिन को मुमकिन बना देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हिरण्याकशिपु को मारने के बाद भी नरसिम्हा का गुस्सा वो बहुत शदीद था। जी, उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। सारे देवता घबरा रहे थे, कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो फिर उन्हें शांत किसने किया? आखिर में सबने प्रहलाद से कहा कि तुम ही कुछ करो। अच्छा। जब नन्हा प्रहलाद डरते डरते आगे बढ़ा और उसने नरसिम्हा भगवान के चरण छुए, उनकी स्तुति की, तो उनका सारा गुस्सा फौरन खत्म हो गया। यानी भक्ति की ताकत ने उनके गजब को भी ठंडा कर दिया। बिल्कुल, ये भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है कि खालिस अकीदत खुदा के गजब को भी मोहब्बत में बदल सकती है। खुदा अपने भक्त की पुकार पर पिघल जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, अब जरा इस अवतार की मजमूई अहमियत और विरसे पर बात करते हैं। बुनियादी तौर पर तो नरसिम्हा का ज़ुहूर धर्म की बहाली के लिए था, यानी कायनाती तवाजुन और नेकी को दोबारा कायम करना। सही। वो बुराई पर अच्छाई की फतेह, अपने भक्तों की हिफाजत और इलाही इंसाफ की एक बहुत ताकतवर अलामत है। उनकी पूजा भी मुख्तलिफ शक्लों में होती है, मैंने सुना है। जी हाँ, खास तौर पर 2 रूप मशहूर हैं। उग्र नरसिम्हा जो खौफनाक गुस्से वाले रूप में है, और योग नरसिम्हा जो पुरामन मुरागबे की हालत में है। और वो अहोबलम में 9 नरसिम्हा का जिक्र भी आता है। जी, अहोबलम बड़ा मुकद्दस मकाम है जहाँ उनकी 9 मुख्तलिफ शक्लों की पूजा होती है, और हर साल नरसिम्हा जयंती का त्यौहार भी मनाया जाता है। एक दिलचस्प बात कुछ जदीद तज्जियों में मिलती है, जैसे दशावतार को डार्विन के नजरिया इर्तिका से जोड़ने की कोशिश। हाँ, ये एक नजरिया है। कुछ लोग कहते हैं कि मत्स्य यानी मछली, फिर कुर्म यानी कछुआ, वराह यानी सुअर, फिर ये नरसिम्हा आधा जानवर आधा इंसान, ये शायद जिंदगी के इर्तिका के मराहिल दिखाता हो। ये एक अलग जाविया है सोचने का। बिल्कुल। और एक और अहम बात नरसिम्हा पुराण में मिलती है। कहा जाता है कि नरसिम्हा का नाम लेने में इतनी ताकत है कि नर्क में पड़ी रूहें भी मुक्ति पा सकती हैं। नाम की इतनी ताकत। जी। तो आखिर में ये सारी कहानी, ये पेचीदा वरदान, ये खौफनाक रूप और फिर भक्ति से शांत हो जाना, ये सब हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? देखें, ये कहानी हमें दिखाती है कि किस तरह इलाही ताकत ने खुद पर लगाई गई हुदूद यानी वरदान की शराइत के अंदर रहते हुए भी इंसाफ कायम किया। ये सिखाती है कि उसूलों और कानूनों की पाबंदी करते हुए भी तख्लीकी और मुअस्सर हल निकाले जा सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज के दौर में जब हमें बेशुमार चैलेंजेस का सामना है, क्या हम भी इसी तरह कवायद के अंदर रहते हुए इंसाफ के क़याम और मुश्किलात पर काबू पाने के लिए नए और गैर मामूली रास्ते तलाश कर सकते हैं? ये एक सोचने की बात। नमस्ते ज्ञान के जिज्ञासुओं, स्वागत है आपका जहां हम खोलते हैं ब्रह्मांड के वो रहस्य जो आपकी कल्पना से भी परे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब अहंकार और वरदान का कवच किसी को अजय बना दे तो भगवान उसे तोड़ने के लिए किस रूप में प्रकट होते हैं? एक ऐसा रूप जो ना मनुष्य का है ना पशु का, जो ना दिन में आता है ना रात में, और जिसका प्रहार किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं होता। आज हम भगवान विष्णु के चौथे अवतार श्री नरसिंह की अद्भुत गाथा जानेंगे, जो केवल एक भक्त की पुकार पर प्रकट हुए। ये कहानी है कि कैसे हिरण्यकश्यप का आतंक समाप्त हुआ और कैसे अटूट श्रद्धा ने मृत्यु को भी मात दे दी। ये कथा सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान हर सीमा को तोड़कर प्रकट होते हैं। ये कहानी शुरू होती है भगवान विष्णु के श्रापित द्वारपालों जय और विजय से, जिन्होंने भगवान के शत्रु के रूप में जन्म लेना चुना। इनमें से एक था हिरण्यकश्यप। जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार में उसके भाई का वध किया तो प्रतिशोध में जलते हुए हिरण्यकश्यप ने अजय बनने की ठान ली। उसने ऐसी घोर तपस्या की कि स्वयं ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा, और फिर उसने अपनी बुद्धि के जाल से एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे लगभग अमर बना दे। मेरी मृत्यु न किसी मनुष्य से हो, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। वरदान मिलते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार चरम पर पहुंच गया। उसने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया और केवल अपनी पूजा का आदेश दिया। लेकिन उसी के घर में उसके पुत्र प्रहलाद ने जन्म लिया, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। ये भक्ति उन्हें अपनी माँ के गर्भ में देवर्षि नारद से मिली थी। जब हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र की विष्णु भक्ति का पता चला तो वो क्रोधित हो उठा और प्रहलाद को मारने का फैसला किया। उसने प्रहलाद को मारने के अनगिनत प्रयास किए। उसे विष दिया गया जो अमृत बन गया। उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश हुई, पर हाथियों ने उसे अपनी सूंड पर उठा लिया। उसे विषधर सर्पों के बीच फेंका गया, पर सर्पों ने उसे अपना आसन बना लिया। हर बार भगवान की कृपा ने उसे बचा लिया।
अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे आग में न जलने का वरदान था। वो प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठी, लेकिन विष्णु भक्ति के प्रभाव से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहे। हर प्रयास में असफल होने पर क्रोधित हिरण्यकश्यप ने गरज कर पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ पिताजी, वो इस खंबे में भी है। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से उस खंबे पर प्रहार किया और तभी उस खंबे को चीरते हुए एक ऐसी भयंकर गर्जना हुई जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला गया। खंबे से प्रकट हुआ एक ऐसा अद्भुत और रौद्र रूप जिसे देख सब कांप उठे। आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का। वो थे भगवान नरसिंह। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को महल की देहरी पर न अंदर न बाहर, संध्या काल में न दिन न रात, अपनी जांघों पर लिटाकर न धरती न आकाश में, अपने तेज नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र उसका सीना चीर दिया। इस तरह भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए अधर्म का नाश किया। इस कहानी का सार ये है कि सच्ची भक्ति में भगवान को प्रकट होने पर विवश करने की शक्ति होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जय श्री नरसिंह जरूर लिखें। आज हमने भगवान नरसिंह की अद्भुत कथा सुनी, जहां एक भक्त की श्रद्धा ने भगवान को एक अकल्पनीय रूप लेने पर मजबूर कर दिया। ये कथा विश्वास दिलाती है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए मौजूद है। इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ये कथा आपके जीवन में आस्था और निर्भयता का संचार करेगी। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ। तब तक ज्ञान अर्जित करते रहें और सनातन की शक्ति को महसूस करते रहें। जय हिंद।